गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो त्रिउप स्तंभ चल रहा था हमारा। त्रिउप स्तंभ में हमारा आहार वर्ग चल रहा था। ठीक है, आहार वर्ग में अब जो मैं बात करूंगी वो केवल दुग्ध आहार से बात करूंगी। दुग्ध आहार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जो जो टॉपिक आते जाएगा उसे हम कवर करते जाएंगे। तो दुग्ध आहार से शुरू करते हैं। दुग्ध आहार क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मिल्क, यानी कि दुग्ध संगठन। जो कंप्लीट फूड, मिल्क इज़ वन ऑफ द कंप्लीट फूड हैविंग प्रोटीन, शुगर, फैट्स एंड मिनरल्स, विटामिन. Proteins. Main protein is CCAM, occur in the combination with calcium as calcium cysanuregenate. Other proteins are lactoalbumin, lactoglobulin. Fat क्या है? The amount of fat varies in different variety of milk. Sugar क्या है? Called lactose or milk sugar. It is less sweet than cane sugar and easily fermented by lactobacillus. Vitamins. Except vitamin C, milk contains all the vitamins, minerals. Milk is a rich source of calcium. Other minerals found in milk are phosphorus, sodium, potassium, magnesium, cobalt, iodine, etc. Milk is a very poor source of the iron. अगर हम बात करें पर 100 ग्राम न्यूट्रिटिव वैल्यू की, तो बफेलो में फैट होता है 6.5, प्रोटीन होता है 4.3, लैक्टोज 5.5, कैल्शियम 210, आयरन 0.2, विटामिन C 1. ठीक है, मिनरल 0.8 ग्राम, वाटर 81 और एनर्जी 117 किलो कैलोरी. काओ में 4.1 फैट होता है, प्रोटीन 3.2 होता है, लैक्टोज 4.4 होता है, कैल्शियम 120 होता है, 0.2 आयरन होता है, विटामिन 2, मिनरल्स 0.8, विटामिन C 2 होता है. ठीक है, 2 ग्राम होते हैं. ठीक है, उसके बाद मिनरल कितना होता है? 0.8, वाटर 87 और एनर्जी 67. गोट के मिल्क में 4.5 फैट, प्रोटीन 3.3, लैक्टोज 4.6, कैल्शियम 170, आयरन 0.3, विटामिन C 1, मिनरल 0.8 और वाटर 86 और एनर्जी 72. यहीं ह्यूमन के मिल्क में अगर हम बात करें तो फैट 3.4, प्रोटीन 1.1, लैक्टोज 7.4, कैल्शियम 28, आयरन नहीं होता, विटामिन C 3, मिनरल 0.1, वाटर 88, एनर्जी 65. स्किम्ड मिल्क, milk from which fat has been removed. It is devoid of fat and fat soluble vitamins but a good source of milk protein and calcium. Toned milk, it contains 1 part of water, 1 part of natural milk यानी कि buffalo and 1/8 part of skim milk powder. The mixture is stirred, pasteurized and supplied in poly packs or bottles. Toned milk has less amount of fat. Milk-borne disease, milk is a vehicle for different diseases agents by following the dairy animal, human handler, the environment, contaminated vessel and water and flies, dust, etc. The disease can be classified as infectious of animal that can be transmitted to the man: tuberculosis, brucellosis, streptococcal infection, streptococcal poisoning, salmonellosis, cowpox, foot and mouth disease, anthrax, leptospirosis, etc. फिर है इन्फेक्शन जो प्राइमरी है मैन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क. तो टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर, शिगेलोसिस, कोलेरा, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकल फूड पॉइजनिंग, diphtheria, tuberculosis, enteroviruses, viral hepatitis, etc. Measure to achieve clean and safe milk. Animal should be healthy and clean. Place to keep the animal should be sanitary. The milk pot must be sterile and keep covered. The water supply must be bacteria free. The milk handler must be free from infectious disease, and before milking they must wash their hand and arms. Milk should be cooled immediately to below 10 degrees Celsius after it is drawn to the report the bacterial growth. दुग्ध परीक्षा यानी कि टेस्ट फॉर मिल्क कैसे करेंगे? मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मिल्क. द डेफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिथाइलिन ब्लू इज एडेड टू 10 ml of milk and the sample is held at 37 degrees Celsius until the blue color has disappeared. The milk which retain blue for long period is considered to be the best quality. Grading of the quantity of the milk is decided on the basis of time of disclosation. The test is easy and cheap. Pasteurization of the milk, it is a heating of the milk to such temperature and for such time of period as are required to destroy any pathogen that may be present by causing minimal changes in the composition, flavor and nutritive value. There are three methods are very common for the pasteurization of the milk. Hodler wet method, LTLT,
Milk is kept at 63 degrees Celsius for at least 30 minutes and then quickly cooled to 5 degrees Celsius. This method is used in small and rural communities. HTST method, high temperature and short time method. Milk is repeatedly heated to 70 degrees Celsius temperature and at least for the 50 seconds and then quickly cooled it to 4 degrees Celsius. This is most widely used method. Very large quantity of milk per hour can be pasteurized by this method. UHT method, ultra high temperature method. Milk is rapidly heated to the 125 degrees Celsius for few seconds only. It is then rapidly cooled and packed. The household method for prevention of milk is boiled and keeping in refrigerator. Fruits and vegetable hygiene. The fruits and vegetables which are consumed raw should be washed before eating. Handling should be hygienic. Rotten fruit and vegetables should be discarded. Cooking vegetables are free from pathogenic organisms. Sanitation of eating places. The applicable standard for the restaurant and the eating house in India according to Model Public Health Area 1955 are they should be away from a open drain, stable manure, pit, excreta and other nuisances. Floor should be impervious to keep them clean. Wall up to 3 feet should be smooth. Corner of the rounded and improvement at deed. At dest 100 feet. At dest 100 feet square area per 10% should be free. ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन शुड बी मेंटेन. किचन शुड बी इम्प्रीवियस स्मूथ एंड मिनिमम 60 feet of area for ventilation. 25% of window area and 2% of ventilation should be there. A separate room with temperature control for storage should be made. Cooked and uncooked food should be kept in separate rooms. Proper water supply and washing facilities should be there. Refuse should be collected in covered in preserves bin and disposed of twice a day. Next है food handler. Proper handling of food utensils and dishes together with good personal hygiene is necessary to prevent the infectious like diarrhea, dysentery, typhoid, viral hepatitis, protozoal and helminthic infection, streptococcal, streptococcal and salmonella infection, etc. The measures are complete physical examination and the family history of infectious disease of food handler is required. But before employment, the day-to-day health inspection of food handler is required. Education of food handling should be given to handler as follows. The hand should be clean at time and should be scrubbed with soap, washed after toilet. Fingernails should be kept trimmed and free of dirt. Head covering should be provided to prevent the loss of hair entering the food. Scrub clean white overall should be worked. Coughing and sneeze near the food, licking of finger before handling should be avoided. Preservatives of food. Objective to preserve the nutritive value, to prolong the life of the food, to add variety of food preparation, to make the food available even in off the season, to avoid wastage of the food, to save time in procurement principle, to maintain the species and to prevent entry of the organism by airtight packaging, to make liquid free from bacteria by filtration through porcelain filter, to destroy enzymes while blanching, pasteurization, example pasteurization of milk, to destroy pathogen by irritants of the food and fruits and vegetables. Method: bacteriostatic method, dehydration, removal of moisture from the fruits, chilies, preparation of milk powder from food, from milk, etc. Coating of sodium silicate over the egg closes the prone and prevents spoilage. Chilling or refrigerated storage of fruits, vegetables, milk, meat, etc. in the refrigerator. Salting, prickling of lemon, chilies, etc. Chemical use of benzoic acid. Bactericidal method: heating, pasteurization of food, smoking, example meat and fish, canning, example fish, cold drinks, etc. Irradiation, example fruits, vegetable, irradiation by UV rays. फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस वेयर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड टू मेंटेन द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डाइट ऑफ अ गुड ग्रुप, अ कम्युनिटी, फॉर अ पॉपुलेशन. It is to prevent some nutrition disorders on long term basis. Addition of vitamin A and D in vanaspati ghee and milk. Addition of iodine in the common salt.
addition of iron to common salt, fluoridation of water, etc. The criteria are as follows. The food fortification must be consumed a daily diet. The amount of nutrient added must be effective for low consumption and without hazardous effect of high consumers. The addition of nutrients should be cause any change in the taste, smell, appearance, or consistency. The cost of fortification should be beyond public reach. Alcoholism is a pattern of alcohol intake which is harmful to individual or to the family. An alcohol dependent person give priority of drinking over other activities. The tolerance of the effect of the alcohol developed, he should shows repeated withdrawal symptoms and get relief by further drinking. Causes illiteracy, school dropouts, and poor training of children. Parental alcoholism or alcoholism by friends. Advertising promotions of alcoholism and employment outside the home. Experimentation with drinking as a symbol of adult behavior in adults. Psychiatric disease, anxiety, depression, psychosis, etc. Alcohol is rapidly absorbed from the stomach and small intestine within 2 to 3 minutes of consumption. It can be detected in the blood. The maximum concentration reaches about 1 hour after the consumption. The presence of food in the stomach inhibit the absorption of alcohol because of the dilution. Problem caused by alcohol. Social problem, psychological और physical problem. Social क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा, मैरिटल टेंशन होगी, चाइल्ड अब्यूज़ होगा, ठीक है, और लड़ाई दंगा करेगा, ठीक है. फिजियोलॉजिकल क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर कोई जैसे कि एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाना, या डिस्टर्बेंस हो, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाना, ये सब, या कोरेक्सको कॉफ्स साइकोसिस हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद वर्किंस इंसेफेलोपैथी होगी, ठीक है. फिजिकल क्या हो गया, एक्यूट एंड क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन हो गया, कैरोसिस ऑफ लीवर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, पेनक्राइटिस हो गया, जीआईटी कैंसर हो जाएगा, ठीक है, जीआईटी का इनफर्टिलिटी आ जाएगी, ये सारे हो गए. हेमरेज भी हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है. मैनेजमेंट क्या है, एडवाइस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द alcohol and safe level of consumption. Change the job or alter the leisure activity if these are contributing to the problem. Supportive psychotherapy and counseling of the patient. Use of benzodiazepine 20 mg 6 hour for 5 to 7 days in withdrawal symptom. Disulfiram can be given to the patient who have difficult to resist the impulse of drink after becoming abstinent, ठीक है. आयुर्वेदिक डाइट एंड लाइफ स्टाइल. डायबिटीज़, मधुमेह होता है, सब पड़ा हुआ है ये, ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेद में मधुमेह का वर्णन प्रमेह के अंतर्गत मिलता है. प्रमेह कफ एवं मेद प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, अतः इसमें इस प्रकार का आहार दें जो कि कफ व मेद को नाश करे तथा साथ ही अन्य दोषों को ना बढ़ाए, ठीक है. पथ्य क्या है इसमें, प्राणाशाली चावल, साठी, यव, कोदो, चना, अरहर, कुल्थी एवं मूंग को बदल बदल कर विभिन्न कल्पनाएं द्वारा प्रयोग करेंगे, ठीक है. भोजन को घृत के साथ तेल के सिद्ध करके खाना देना चाहिए, अर्थात यूष एवं शाकों को सरसों, इगुंदी, दंती एवं अतीस के तेल से सिद्ध करके खाना चाहिए. भोजन में मधु मिलाकर खाना चाहिए. मांसाहारी व्यक्ति को मेद रहित मांस यथा पिशीमर, प्रदूध एवं जांगा मांस एवं मांस रस का प्रयोग करना चाहिए. अपत्य क्या है, नयान, पिसा हुआ अन्न, घृत, दुग्ध, इक्षुवारिका, दधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए. स्वाभाविक तृष्णोदक से मेरे सुरा आसप, अधिक जल, खट्टे शरबत नहीं लेने चाहिए. ग्राम, अनूप एवं ओदक जीवों के मांस एवं मांस रस को त्याग देना चाहिए. एज पर मॉडर्न point of view, dietary management of insulin depend upon the diabetes is a bit complicated. In this cases, the meal have to be adjusted according to the type of insulin dose being taken. Here the dietary management of non-insulin independent diabetes lifestyle disorder is being discussed. Principle क्या है, maintain ideal body weight and general well-being. Keep the person relatively free of symptoms. Prevent further complication. Modification of nutritional need. Energy. If an individual is in the range of normal weight, the energy according to RDI should be taken. If he is on the underweight, and increases in total energy intake is recommended. If he or she is overweight, over the energy is restricted is essential. Carbohydrate. It is often a common mistake to give a carbohydrate restricted diet to a diabetic person, but at least 80 to 100 grams carbohydrate should be essential by there in the diet to prevent too much breakdown of fat and accumulation of its byproduct. In fact, 50 to 55% of
Day's calories should be common for carbohydrate. However, most of the carbohydrate should be taken in the form of complex carbohydrate. Refined or simple carbohydrate need to be avoided because they are readily absorbed and immediately raise blood sugar. Fat. The diabetic individual should be allowed to be taken more than 15 to 20 gram fat per day. Excessive amount is a risk factor for heart disease. Food high in saturated fat and cholesterol should be limited. Effort should be made to give saturated fatty acids. Protein, vitamins and minerals. The amount of these nutrients should be taken in non-diabetic person according to RDA. Dietary modification. Regulation of meals consumed essential. He should not skip meal or keep a fast or take a feast on occasion. The modification the diet are energy giving up cereals, roots and tubers, sugar, fat. Bodybuilding group, milk, pulses, egg, flesh food. Protective and regulatory group, वेजिटेबल, फ्रूट्स. ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या होता है? अच्छा, सीरियल्स में हम क्या देंगे? दाल चावल वगैरह, ठीक है. रूट और ट्यूबर्स में पोटैटो, स्वीट पोटैटो वगैरह, ठीक है. शुगर्स में क्या आ गई? शुगर हो गई. टेबल स्वीटनर लाइक टेबल शुगर हो गया, हनी हो गया, ठीक है. स्वीट लाइक जैम्स, जेलीज वगैरह, टॉफ़ीज़ हो गया. फैट में क्या है? हम अनसेचुरेटेड फैट लाइक ग्राउंड नट, सोया ऑयल, ये सब सनफ्लावर ऑयल, ठीक है. उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक मिल्क में क्या हो गया? बफेलो का मिल्क शुड भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाना चाहिए, ठीक है. और काव का मिल्क बेटर होता है, ठीक है. मिल्क प्रोडक्ट लाइक पनीर, कर्ड, खोया कैन बी टेक मॉडरेटली. पल्सेस क्या है? यूज़ ऑफ पल्सेस शुड बी एनकरेज. फ्लोर ऑफ चपाती शुड बी टेकन मिक्सड क्वालिटी. आटा और बेसन दोनों मिला के. एग शुड बी टेकन मॉडरेटली आफ्टर द डिस्कार्डिंग एग यॉक. फ्लैश फूड, रोस्टेड और बेक्ड मीट शुड बी टेकन इंस्टेड ऑफ फ्राइंग, ठीक है. उसके बाद क्या है? ऑर्गन लाइक किडनी, लिवर एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर रिस्क इन कोलेस्ट्रॉल. प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन. वेजिटेबल इंक्रीज द इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स स्पेशली फाइब्रस टाइप दैट इज लीफी वेजिटेबल. गॉड, पम्पकिन, ब्रिंजल, बिटर ग्राउंड, कैरेट, रेडिश, कैबेज, काउलीफ्लावर, लेडी, लोटस स्टेम, बीन्स एक्सेट्रा. फ्रूट्स क्या? वेरी स्वीट फ्रूट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. एग्जाम्पल मैंगो, ग्रेप्स, सपूत, शुगर केन जूस, watermelon, banana, etc. Other like guava, apple, oranges, mossambi can be taken moderately. Fruit of jamun is beneficial for diabetic patient, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी, ठीक है. ओबेसिटी के बारे में मैं बात करूँ तो ओबेसिटी क्या होती है? स्थौल्य होती है, सबको पता है. अष्टनिंद्रिय व्याधि है, ठीक है. ओबेसिटी के बारे में पता है सबको, मैं नहीं बता रही, ठीक है. और नेक्स्ट जो है, ठीक है, हृदय रोग के बारे में भी सब जानते हैं, ठीक है. उसके बाद अब बात करो हाइपरटेंशन के बारे में भी सबको पता है, ठीक है. ये तीनों डिजीज़ हमें पता है कैसे होती हैं, वो भी पता है, ठीक है. उसके बाद निद्रा के, अब निद्रा के बारे में आ जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे अभी इसे ख़त्म कर देते हैं, इतना नहीं पूछा जाता इतना डिटेल में, ठीक है. अगर आ भी गया तो इसके नॉर्मल पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है. 5 नंबर में नॉर्मल पॉइंट ही चाहिए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है. पढ़ भी चुके हैं हम, आहार विहार भी सब पढ़ चुके हैं, ठीक है. निद्रा. निद्रा की निरुक्ति देखो अब. देहम विश्रमते यस्मात् अस्मन् निद्रा प्रकृति. जिस अवस्था में शरीर को आराम करता है उसे निद्रा कहते हैं, ठीक है. निद्रा की उत्पत्ति यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मान्त क्लमनान्तिवः विषयेभ्यो निर्वर्तन्ति तदा स्वपति मानवा. जब मन में संयुक्त आत्मा क्लांत मतलब थकावट युक्त निष्क्रिय हो जाती है एवं इंद्रियों के भी क्लांत होने अपने अपने विषयों से संयुक्त नहीं होते तब मनुष्य सो जाता है. निद्रा के भेद कितने होते हैं? तो आचार्य चरक, आचार्य अष्टांगहृदय और आचार्य सुश्रुत ने अपने अपने. आचार्य चरक 3, आचार्य चरक 6, आचार्य सुश्रुत 3, आचार्य अष्टांगहृदय 7, ठीक है. अब चरक ने कौन से बताए? तमोभाव तम से उत्पन्न होती है. श्लेष्म समुद्र कफ से उत्पन्न होती है. मन शरीर संशय चित्त खेद से जो मन व शरीर के थकने से होती है. आगंतुक यानी कि अरिष्टकारी. व्याधि अनुवर्तती व्याधि से उत्पन्न. रात्रि स्वभाव प्रभाव काल स्वभाव स्वभाव से रात्रि में आने वाली निद्रा, ठीक है. अष्टांग में जो 7 बताई गई. तमोभाव, ठीक है. कफजन, चित्त खेद, देह खेद से, आगंतुज, आम्य, भूतधात्री, ठीक है. भूतधात्री, भूधात्री नहीं भूतधात्री, ठीक है. सुश्रुत ने 3 बताई. तामसिक, वैकारिक और भूतधात्री, ठीक है. इनमें से रात्रि को जो सुबह में आने वाली निद्रा होती है वो भूतधात्री अर्थात प्राणियों को धारण करने वाली एवं पोषण करने वाली होती है. वैकारिक निद्रा जो रोगियों की अवस्था में होती है और तामसिक निद्रा तमोगुण बहुल कफ संज्ञावत स्त्रोतों को अवरोध कर देती है जिससे मृत्यु कारक निद्रा भी कहते हैं,
ठीक है। योग्य निद्रा विधि क्या है? सायकाल लघु अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग सायकाल लघु हित भोजन करके मन का समाधान करके पवित्र होकर एवं भगवान को स्मरण करके अपनी शैया पर शयन करना चाहिए। सोने का स्थान पवित्र एवं बिना भीड़ वाला होना चाहिए। शैया उपादान से तकिया पर्याप्त लंबी चौड़ी समतल एवं सुखदायक होनी चाहिए। शयन का पलंग जानू भर ऊंचा एवं शुभ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वृद्धावस्था विकार बीमारी धातु निद्रा के लाभ हैं। ठीक है। उसके बाद निद्रा के क्या लाभ है? निद्यात सुखम दुखम पुष्टि काश्रम बलाबलम वृक्षता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचा। सुख दुख पुष्टि कृशता बल दुर्बलता वृक्षता क्लिबंता ज्ञान अज्ञान और जीव से जीवन ये सब निद्रा का आश्रित है। अर्थात उचित निद्रा सेवन से सुख पुष्टि बल वृक्षता ज्ञान और जीवन की प्राप्ति होती है एवं अनुचित निद्रा से दुख दुर्बलता क्लिबंता अज्ञान एवं मृत्यु की प्राप्ति होती है। उचित निद्रा सेवन से शरीर को सुख एवं आयु उसी प्रकार युक्ति करती है जैसे योगी पुरुष को सिद्धि से तत्व ज्ञान होता है। आयु के अनुसार निद्रा 1 से 5 दिवस दैनिक 1 से 5 बच्चों में 16 घंटे की निद्रा चाहिए होती है। 3 से 5 साल के में 14 घंटे की। ठीक है। उसके बाद 2 से 3 13 घंटे की, 4 से 9 11 घंटे की, 10 से 12 14 वर्ष 9 घंटे की, 19 से 30 वर्ष 8 घंटे की, 33 से 34 वर्ष 45 वर्ष 7 घंटे की और 50 से 60 50 से 80 70 जो भी बचती है वो 6 घंटे की। ठीक है। आयुर्वेदिक अनुसार बाल्यावस्था में कफ, मध्य अवस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात की प्रधानता होती है तथा निद्रा भी क्रमशः कम होती रहती है। स्वस्थ एवं रोगी व्यक्ति की निद्रा स्वस्थ व्यक्ति को भूधात्री निद्रा आती है जो प्राणियों का पोषण एवं धारण करती है, जबकि रोगी व्यक्तियों को वैकारिक निद्रा आती है जो कि रोग होने की सूचक होती है। युक्त निद्रा के लक्षण: उचित प्रकार से की गई निद्रा उसी प्रकार मनुष्य को सुख और आयु देती है जिस प्रकार उचित बुद्धि के आने पर पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रात्रि जागरण एवं दिवा स्वप्न: अगर कोई रात्रि में जाना है, रात्रि में जागने में शरीर में रुक्षता और दिन में सोने में स्निग्धता बढ़ती है। बैठे बैठे सोने से तो रुक्षता उत्पन्न होती है, ना ही स्निग्धता उत्पन्न होती है। इसलिए अगर कोई जैसे मान लो रात में नहीं सोया और बैठ के सो गया तो क्या हो गया, वो उसकी नींद पूरी हो गई तो वो अच्छा होता है। ठीक है। दिवा स्वप्न: ग्रीष्म ऋतु में छोड़कर सभी ऋतुओं में हमें दिवा स्वप्न निषेध होता है क्योंकि कफ और पित्त विकृत हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आदान काल एवं रुक्ष है, इस समय वायु बढ़ती है और रातें बहुत छोटी हो जाती हैं, इसलिए दिन में सोना लाभकारी होता है। किंतु मेदस्वी नित्य स्नेह का सेवन करने वाले कफ प्रकृति कफ रोगी दूषित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दिवा स्वप्न सभी ऋतुओं में निषेध माना गया। गीत गाने से क्रश, पढ़ने से क्रश, मार्ग चलने से क्रश, अतिसार से क्रश, मद्य पीने से क्रश, भोजन न करने वाले, मेद कफ स्वेद रस रक्त की क्षीणता वाले, यान और वाहन से थके हुए, स्त्री सेवन करने वाले, अजीर्ण रोगी, छत और क्षीण रोगी, तृष्णा शूल स्वास्थ्य से पीड़ित, ऊपर से गिरे चोट लगे हुए, रात्रि जागृत, क्रोध शोक भय से पीड़ित व्यक्ति, वृद्ध बालक एवं स्त्री, इन सभी के लिए सभी ऋतुओं में दिवा स्वप्न उचित है। रात में जागने वाले व्यक्तियों के लिए जितनी देर तक रात में जागा हो उसके आधे समय तक दिन में सो जाना चाहिए। दिवा स्वप्न हानि क्या होती है? निषेध स्थितियों में दिवा स्वप्न हलीमक, शरीर शूल, स्तमित, शरीर में भारी पर अंग मर्द, अग्निनाश, हृदय का कफ से लिप्त होना, शोफ, अरुचि, हृदयास, पीनस, अर्धभेदक, कोठ, पिंडिका, कंडू, तंद्रा, कास, गले के रोग, स्मृति नाश, बुद्धि नाश, मूर्छा, श्रोतसों का अवरोध आदि रोग होते हैं। अति निद्रा के हानि: अति निद्रा के कारण कफ की बहुलता हो जाती है, अग्नि पाचन करने में समर्थ नहीं होती है तथा अन्नपान का पाचन नहीं होता। अत्यधिक निद्रा के कारण अग्नि कफ को नहीं पचा पाती तो अति निद्रा के कारण क्या होता है? कफ की बहुलता हो जाती है, अग्नि पाचन करने में समर्थ नहीं होती अतः अन्न का पाचन नहीं हो पाता। अत्यधिक निद्रा के कारण अग्नि कफ को नहीं पचा पाती और अपचयमान कफ स्रोतसों को अवरोध कर देती है। इस स्रोतसों के अवरोध में होने से शरीर में भारीपन आ जाता है और भारीपन से आलस आता है और अति निद्रा आती है। ठीक है। शरीर अति निद्रा रोकने के उपाय क्या होते हैं? काय विरेचन, शिरोविरेचन, वमन, रक्तमोक्षण, धूम्रपान, भूख प्यास, भय, चिंता, क्रोध, हर्ष, उद्घाटन आदि इन सब का सेवन करना चाहिए। ठीक है। निद्रानाश के कारण अति सेवन रोकने के उपाय निद्रानाश के कारण भी है। इनके अतिरिक्त कार्य में व्यस्त रहना, काल, वृद्धावस्था, विकार, बीमारी, धातुक्षय, वात एवं पित्त वृद्धि, वातिक प्रकृति एवं स्वभाव से नींद का न आना निद्रानाश के अन्य कारण। निद्रानाश या निद्रा में चिकित्सा हम कैसे करेंगे? दूध, गन्ने का रस, अनूप एवं जलीय देश प्राणियों के मांस एवं मांसरस, पिट्ठी के बने पदार्थ, शाली चावल का मध्य, उड़द, किलाट, भैंस के दूध का दही।
अभ्यंग, ऊर्ध्ववर्तन, स्नान, शिर, नेत्र एवं कान में तेल से तर्पण, शरीर पर स्निग्ध द्रव्यों का लेप, संवाहन, सोने के लिए सुंदर बिछा हुआ पलंग, निर्मल वस्त्र, फूल, इत्र व धूप की सुगंध, मंद प्रकाश, मृदु भाषण, गान, सुख दुख से निश्चिंत होकर कार्यों को पूर्ण करना, इच्छा अनुकूल विषय प्रियजनों से वार्तालाप करना एवं स्त्री बहुलों का अति आलिंगन करना। ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आखिरी त्रिउपस्तंभ में 3 उपस्तंभ थे। फर्स्ट हो गया आहार, देन निद्रा, निद्रा इज स्लीपनेस, ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाली कंडीशन आप इसमें बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो अगर मॉडर्न के व्यू से देखोगे तो थोड़ा सा मॉडर्न बता देना। इट इज़ नोन एज स्लीप, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होती है जो हम खुद सो जाते हैं और उठ जाते हैं। अनकॉन्शियस वो नींद होती है जो हम उठते ही नहीं है, जैसे कि कोमा में आती है, हमें इतना काफ़ी है। ठीक है, कोमा क्योर होता है बट इट इज़ अ मतलब कितने टाइम में होगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इट इज़ अनकॉन्शियस स्लीप। ठीक है, और एक स्लीप कौन सी होती है, डेथ वाली स्लीप होती है। वो भी उसमें भी क्या होता है, ब्रेन और हार्ट काम करना आपका बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य व्याख्या। तो ब्रह्मचर्य शब्द इंद्रिय संयम सौमन्य प्रवर्तो ब्रह्म ज्ञान अनुगुण ग्रहते, अर्थात चरक ने चरक सूत्र का है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों का नियमन तथा मन के शुभ भाव से ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल होते हैं, उनका ग्रहण किया जाता है। उन्हें ब्रह्मचर्य का अर्थ प्रमुख रूप से उपस्थित इंद्रियों पर संयम करना अर्थात मैथुन का संयुक्त प्रयोग ही ब्रह्मचर्य है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वास्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुनम त्यागम ब्रह्मचर्य प्रचलिते प्रक्षते, कर्म मन एवं वचन से सभी भावनाओं में हमेशा मैथुन त्याग करना ब्रह्मचर्य है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वशिष्ठ संहिता एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मैथुन का सर्वत्र निरोध ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य साधु सन्यासी महापुरुषों के पालन योग्य है, किंतु आयुर्वेद में वर्णित ब्रह्मचर्य मैथुन का सम्यक प्रयोग है जो कि जन साधारण गृहस्थ द्वारा पालन करने योग्य है। यदि जनसाधारण मैथुन का सर्वत्र त्याग करते हैं तो शुक्र वेग धारण जन्य रोग, मानसिक रोग एवं अन्य रोग होने की संभावना होती है। शरीर जायते नित्यम तहीनम सुरत स्पृहा अव्यवयन मेदो वृद्धि शिथिलता तनु। मैथुन न करने से प्रमेय, मेदो वृद्धि तथा शरीर में शिथिलता उत्पन्न होती है। अधिक ब्रह्मचर्य से मनोक्षोभ होता है। मैथुन के 8 अंग एवं ब्रह्मचर्य तो स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गृह भाषण, संकल्प, अध्यवसाय एवं क्रिया निवर्तती। याद रखना, स्मरण करना, याद करना, कीर्तन बातचीत करना, केली मिथुन से पूर्व क्रियाकलाप, प्रेक्षण देखना, गृह भूषण गुप्त बातें करना, संकल्प मैथुन के लिए इच्छा करना, अध्यवसाय मैथुन करना आरंभ करना और क्रिया निवर्त मैथुन क्रिया पूर्ण करना। ये मैथुन के 8 अंग है। इसके विपरीत ऐसा ना करना ब्रह्मचर्य है जो कि आयु, आरोग्य एवं सुख देने वाला होता है। ब्रह्मचर्य एवं अपरंचर्य का उपयोग एवं महत्व। ब्रह्मचर्य पालन में शुक्र रक्षा द्वारा शुक्र की अनावश्यक हानि को रोका जा सकता है, चूँकि शुक्र शरीर की अंतिम सार धातु है अतः इसके क्षय को रोकने आयु का लाभ होता है। इसके अतिरिक्त यह तेज, बल, वीर, प्रभा, प्रज्ञा एवं यशवर्धक है। अतिवैभव एवं वीर्य नाश फल, दुर्बलता, मुक्षोष, पांडु, थकान, पीड़ा, क्लिवता, शुक्र का क्षीण होने से शुक्राशय के लक्षण उत्पन्न होते हैं। लिंग एवं वृक्षण में वेदना, मैथुन करने में अशक्ति, देर से शुक्र स्त्राव, अल्प शुक्रता, शुक्र में रक्त आना, रुक शुक्र का नहाना, ये शुक्राशय के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताए। चिकित्सा भी बताई उन्होंने, शोष, पीड़ा, प्लीहा, वृद्धि, मृच्छा एवं मृत्यु। ठीक है, शुक्रोत्पत्ति कैसे होती है, रस से वही धातु बनती हैं उससे होती है। ठीक है, वीर रक्षा विधि एवं बाजीकरण द्वारा सूरत स्पृह, आयुर्वेदिक विधि से मैथुन करने से वीर की रक्षा होती है अर्थात उचित आयु, उचित समय, योग स्त्री के साथ उचित स्थान पर मैथुन के पूर्व एवं पश्चात कर्म, इन सबको ध्यान में रखकर मैथुन करने से वीर का नाश नहीं होता। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाजीकरण के लिए उत्तम श्रेष्ठ उत्पन्न करने वाला या हर्ष उत्पन्न करने वाला स्त्री की सर्वोत्तम बाजीकर है। इसलिए निम्न बाजीकरण आहार विहार एवं औषधि का वर्णन आयुर्वेद में ग्रंथों में किया गया है। क्या क्या है, गौधूम, शाली, षष्ठी, चावल, उड़द, अरहर, दूध एवं दुग्ध विकृति, घृत, माखन, मलाई, खोया, मयूर, हंस, चटका, मुर्गा, नक्र का मांस, रोहू मछली, पिस्ता, बादाम, काजू, मुनक्का, रुचिकारक शाखा एवं विविध पेय। विहार में क्या है, अभियंग, उद्वर्तन, स्थान, गंध, माला, भूषण, उत्तम गृह, उत्तम शैया, सुख आसन, नूतन वस्त्र सेवन, सुंदर उद्यान में मित्रों, स्त्रियों आदि के साथ भ्रमण करना, औषधि, शुक्र जीवनीय, ब्रहणीय, बल्य, क्षीर, संसर्जन वर्ग को औषधि, स्वर्ण भस्म, सिंदूर, मकरध्वज, ताल, मखाना,
मूसली से मल का गोंद, मुक्ता, प्रवाल, भांग, गांजा, धतूरा, आकार, कर आदि। वायव्य संबंधी नियम। रात्रि को निद्रा से पूर्व यथाविधि स्वपत्नी के साथ मैथुन करना चाहिए। मैथुन के योग्य आयु सुश्रुत के अनुसार 25 वर्ष के पुरुष एवं 16 वर्षीय स्त्री को गर्भाधान करने योग्य माना गया है। इससे पूर्व गर्भाधान करने पर गर्भ या तो पेट में ही नष्ट हो जाता है या पैदा होने पर अल्पायु एवं दुर्बल वाला होता है। भागवत ने 20 वर्ष के पुरुष एवं 16 वर्ष की स्त्री का गर्भाधान बताया। भावप्रकाश ने 16 वर्ष तक की आयु वाली स्त्री के बाला, उसके बाद 32 वर्ष तक तरुणी, पश्चात 50 वर्ष तक प्रौढ़ा, इसके अधिक आयु में मैथुन करने हेतु अयोग्य वृद्धा माना है। ग्रीष्म शरद ऋतु में बाला, शीतकाल में तरुणी अर्थात वर्षा में बसंत में प्रौढ़ स्त्री मैथुन में हितकारी मानी गई है। मैथुन के योग्य समय सुश्रुत के अनुसार सभी ऋतुओं में 3-3 दिन तक तथा ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन तक स्त्री संभोग करना चाहिए। ठीक है। चरक के अनुसार शिशिर एवं हेमंत में इच्छानुसार मैथुन, बसंत एवं शरद में अल्प मैथुन एवं ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में मैथुन का निषेध करना चाहिए। मनुष्य को स्त्री के 7 ऋतुकाल में संसर्जन करना, ना कि रस वाला स्त्री में। शीतकाल में रात्रि को, ग्रीष्म में दिन में, बसंत में दिन या रात दोनों में, वर्षा काल में जब वर्षा हो रही हो एवं शरद काल में जब मैथुन की इच्छा हो तभी स्त्री संभोग करना चाहिए। व्यक्ति को शाम, अर्धरात्रि, दोपहर एवं त्योहारों पर मैथुन नहीं करना चाहिए। मैथुन के योग्य स्त्री रूपवती, गुणवती, अच्छे कुल में जन्मी, शीलवान, चरित्रवान, जो मैथुन की इच्छा रखती हो एवं अलंकृत हो। मैथुन के अयोग्य स्त्री रजस्वला, मैथुन की अनिच्छा वाली, मलिन, अप्रिय, ऊंचे वर्ण की, वृद्ध, रोगी, अंगहीन, गर्भवती, द्वेष रखने वाली, योनि रोग रहित, समान गोत्र वाली, गुरु पत्नी, सन्यासी यथा अज्ञा स्त्रियों का संभोग नहीं करना चाहिए। अयोनि, त्रियक योनि एवं दूषित योनि में मैथुन नहीं करना चाहिए। अयोग्य क्या क्या कौन से थे? भूखे, प्यासे, अधिक भोजन किए, रोगी, दुखी, मलमूत्र वायु युक्त, अत्यंत दुर्बल मनुष्य को स्त्री पसंद नहीं करना चाहिए। मैथुन की अयोग्य अवस्थाएं: शुक्र का तैतिक त्याग, लिंग पर आवरण करना, खड़े होकर एवं चित्त लेटकर शुक्र त्याग करना निंदनीय है। मैथुन के योग्य एवं अयोग्य स्थान: अति संवृत, रमणीय, सुगंधित स्थान जहाँ पे सुखपूर्वक वायु बहती हो मैथुन करने योग्य है, किंतु गुरु के घर के समीप एवं खुले स्थान में मैथुन नहीं करना चाहिए। मैथुन के पूर्व स्थान: चंदन का लेप, सुगंधित पुष्प धारण, ये सब करना चाहिए। ठीक है। गर्भाधान विधि: पुरुष वृक्ष होकर, ये सब उसमें आप पढ़ चुके हैं, गायने में पढ़ा होगा। ठीक है। तो इतना काफ़ी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे इसमें। ठीक है। इतना काफ़ी है, इसके आगे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो इतना ख़त्म करें, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ठीक है। तो अब आपका त्रयोपस्थम कंप्लीट हो गया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।